Jai Swaminarayan. Today we learn about Standard 12th English first lesson, the last lesson. Our first lesson is the last lesson. This is very humorous. Written by Alphonso Daudet. He was French novelist, short story writer, and this lesson was set when the Franco-Prussian War was going on. At that time, this lesson was written, so you can understand that what effect you can see in this lesson. Of this war's effect you can see in this lesson. Or this is about school, students and school. So here two main character, that is Franz M. Hamel. That is he was the teacher of that school, and this is the student Franz. These two person are talking most of the things and the story based on that too. That this student was not like to attend classroom. Why he didn't like to attend classroom? Because he like outer atmosphere. उसे क्लास का जो एटमोस्फियर है वो पसंद नहीं था. उसकी जो बाहर का जो एटमोस्फियर है, बर्ड्स का चर्मिंग करना, देन द सोल्जर्स का ड्रिगिंग करना और वो सारी अदर्स बातें जो आवाज होती है नेचुरल, वो देखने को या सुनने को उसे पसंद है. क्लासरूम में जाना उसको पसंद नहीं था. और जो ये टीचर है उससे वो भी बहुत ही उसको डर लगता था, उससे भी कि वो उसे कुछ ना कुछ कहेंगे, होमवर्क नहीं होगा, तो वो डरता था उससे. लेकिन बाद में क्या होता है, जब स्टोरी आगे जाती है तो कुछ ट्विस्ट आता है उसमें. वी कैन सी दैट ऑल ट्विस्ट line by line. When story go ahead you can see the twist. I give you some outline about it. And one other thing is here on this board you can see notice some expression. This expression means here idioms. ये idioms है जो टेक्स्ट बुक में हमें लेसन में देखने को मिलेंगे. इसका मीनिंग भी यहाँ पे है, तो पहले हमें ये देख लेते हैं, उसके बाद हम लेसन का बिगिनिंग करेंगे. In great dread of, fearful in anticipation of something. किसी चीज से डरना. You can note down this expression in your book. Counted on का मतलब होता है to rely or trust on somebody. Then thumb at the edges. Worn or soiled edges caused by frequent handling. In unison. Something happening or being done at same time. A great bustle, that is an excited activity or a rapid, fast में change होना. Reproach ourselves with, उसका मतलब है to express disapproval और क्रिटिसिज्म और डिसअपॉइंटमेंट. सो ये सारे वर्ड्स है हम लेसन में देखेंगे. लेसन की शुरुआत ये जो क्लासरूम का अरेंजमेंट होता है उससे शुरू होती है, और एंड में तो हम देखेंगे क्या होने वाला है. तो वहाँ पे हम देखेंगे कि फ्रेंच का जो एटमॉस्फेयर चेंज होता है, मदर टंग का जो हालत होती है एंड में, वो भी हमें देखने को मिलेंगी. और क्लास में क्या होता है, पहले तो बहुत ही आवाज होती है स्कूल में, उसके बाद सब कुछ इतना क्वाइट हो जाता है, सब कुछ सडन चेंज हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो फ्रेंच का है वो जर्मन के अंडर चला जाता है. उस वॉर में, प्रशियन वॉर में वो जीत जाते हैं, तो क्या होता है, जर्मन के अंडर में चला जाता है सब कुछ. तो वहां पे फ्रेंच के जगह पे जर्मन सिखाने का शुरुआत हो जाता है. दे हैव टू स्टार्टेड जर्मन लैंग्वेज, स्टॉप टू टीच फ्रेंच लैंग्वेज, एंड ऑल दिस सिचुएशन हैपन इन द लेसन. सो वी विल सी नाउ while some paragraph and lines in textbook. Now we can see about the author Alphonso Daudet. He was born in 1840 and died in 1897. Was a French novelist, short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, that is going 1872-1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia
then consisted of what now are the nations of Germany, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि प्रशिया पहले उसका नाम प्रशिया था, अभी उसके अंडर में 3 नेशंस है और उस नेशंस का नेम है जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स भी है, तो ये 3 नेम से अभी हम देखेंगे. और वी कैन सी दिस प्रशिया related these 3 parts of nations. In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. तो यहाँ पे फ्रेंच के जो डिस्ट्रिक्ट है, दोनों डिस्ट्रिक्ट वो प्रशियन के हैंड्स में चले गए हैं. Read this story to find out what effects this had on line at school. हमें स्टोरी में क्या देखने को मिलेगा कि ये प्रशियन के हैंड्स में चले जाता है तो क्या होता है, इसकी इफेक्ट क्या होती है स्कूल लाइफ में, वो भी देखने को मिलेगी. आउटसाइड तो चेंजेस होते ही रहते हैं और इफेक्ट होती है, लेकिन स्कूल में क्या इफेक्ट देखने को मिलती है ये वॉर की, ये भी हमें देखेंगे. नाउ आई स्टार्ट द लेसन. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट एट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, स्पेशली बिकॉज M. Hamel had said that he would question us on participles. So he was afraid that student, I already give the character name, that is Franz. Franz was afraid going to school because why he was afraid? उसे डर लगता था कि उसके जो टीचर है M. Hamel वो क्या पूछने वाले थे उस दिन. ही वॉज आस्क अबाउट पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल्स जो ग्रामर का चैप्टर होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछने वाले थे, इसलिए उसको डर लगता है, मॉर्निंग से ही उसको स्कूल नहीं जाना है. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम एंड दैट डिड नॉट नो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ दैट चैप्टर, दैट्स व्हाई ही वाज अफ्रेड. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edges of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. तो उसको क्या अच्छा लगता है? He was like to go outside. Bright है, warm, bright atmosphere है, warm. That climate was very warm outside. Then other things also he liked. It was all much more tempting than the रूल फॉर पार्टिसिपल्स. तो वो कहना चाहता है कि ये सारी चीजें उसको ज्यादा अच्छी लगती है पार्टिसिपल्स लर्न करने के बजाय. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. बट उसको जाना तो पड़ेगा स्कूल में, लेकिन उसको अच्छा ही लगेगा कि वो जल्दी से स्कूल से वापस आ जाएगा. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the order of the commanding officer. So that means he was passing for going to school. At the time there was a crowd and he saw that why the crowd is here. So there was one bulletin board and that bad news came from that bulletin board. People were gathered there and saw what the instruction given on that bulletin board, that all reads and given here. The lost battle के बारे में भी न्यूज वहाँ पे लिखी थी, the draft और बहुत सारे कमांडिंग ऑफिसर के जो ऑर्डर्स होते हैं वो भी वहाँ पे लिख दिए होते हैं. तो ये सारी बैड न्यूज है वो वहां से ही बुलेटिन बोर्ड रीड करोगे तो पता चल जाएगा. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. वो क्या होता है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता है कि सोचने के लिए कैसे कि क्या हो रहा होगा, कि क्या मैटर होगी. तो ये सारे लोग गैदर हुए हैं. Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice, वो अपने apprentice के साथ यहाँ पे blacksmith थे, watcher थे, वो सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे. They all gathered there and he was that I means here we can say that he was gathered there to see what's going on there. Reading the bulletin called after me, don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time.
मीन्स वो क्या कहना चाह रहा था, बुलेटिन बोर्ड पे ऐसा कुछ लिखा था जिसको रीड करके पता चल रहा था कि तुम स्कूल में फास्ट जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो स्कूल में जाके बहुत सारा टाइम मिलेगा। ये थोड़ा क्रिटिसाइज किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि वहां स्कूल में जाके इतना सारा टाइम क्यों मिलने वाला है, वो सारी बातें उसको बाद में पता चलेगी। अभी तो उसको पता नहीं चल रहा है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. उसे लगा कि he was thinking that they making fun of me, so he reached very fast to direct M. Hamel's little garden without taking breath, और so fast breath वो वहाँ पे पहुँच गया। Usually when the school began, there was a great bustle. वहाँ पे great bustle means यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं एक्टिविटी करने के लिए। जब स्कूल ओपनिंग होता है, दे आर वेरी एक्साइटेड टू डू एक्टिविटीज, दैट मीन्स हियर ग्रेट बसल which could be heard out in the street. The opening and closing of desk lessons repeated in unison. Unison means something happening or being done at some time. तो यहाँ पे क्या होता है, रिपीटेडली एक्टिविटी लेसन वो सब चलता रहता है। तो हम क्या देखेंगे कि डेस्क पे जो बुक्स ओपन होती है, देन बहुत सारे आवाज आ रहे हैं बाहर से, दैट ऑल द थिंग्स गोइंग ऑन व्हेन दैट ओपनिंग ऑफ द स्कूल। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, टीचर भी है जो रूलर लेके रैपिंग कर रहे हैं टेबल पे। बट नाउ व्हाट इज द सडन चेंज, बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क। वो क्या करने लगा, वो अपने डेस्क पे बैठे, रिलाई ऑन, काउंटेड ऑन का मतलब होता है रिलाई ऑन हिज कमोशन, उसकी जो सारी चीजें हैं डेस्क पे वो देखने लगा विदाउट बीइंग सीन। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। सारी चीजें वहां पे नहीं थी, सब कुछ जैसे कि संडे मॉर्निंग में साइलेंट होता है वैसे ही सब कुछ क्वाइट हो गया था। Through the window, I saw my classmates already in their places. M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. उसको तो यही लग रहा था कि हैमेल सर है वो उसको डांटेंगे और रूलर है उसके उनके हाथ में, तो वो बहुत डर रहा था। लेकिन क्या होता है, सडन चेंज ही कैन सी। वो यहाँ पे अप डाउन, यहाँ पे इधर उधर घूम रहे थे, उनके हाथ में रूलर भी थी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। ही साइलेंटली ओपन डोर, उनके जो सारे उसके सारे फ्रेंड्स थे वो भी क्लास के अंदर बैठे हुए थे। Then he just opened the door and went inside. Everybody was sitting silently. Then what happened? He can't imagine that without anything, without any scolding, that teacher enter him into classroom. So his frighten has gone. वो डर रहा था, वो सब चला गया. But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly. उन्होंने kindly क्या कहा उनको? Go to your place quietly, little friends. We were beginning without you. तुम्हारे अलावा भी, तुम्हारे सिवाय हमने क्या किया है, तुम नहीं थे फिर भी हमने क्लास तो शुरू कर लिया है, लेकिन तुम क्विकली जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then when I had got a little over my fright. उनकी जो little over means उनकी जो fright थी, उसको डर लगा था, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, वो भी चला गया after inside that room. Did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. उन्होंने क्या कहा, वहां बैठे बैठे उसने ऑब्जर्व किया कि उनके जो सर है उन्होंने कैसे क्लोथ्स पहने। तो ब्लैक के सिल्की जो कैप पहनी थी एम्ब्रॉयडरी करके हुए, और वो जब इंस्पेक्शन होता है तभी पहनते हैं। Then what he had seen there, the whole school seemed so strange, solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the villager people sitting quietly like ourselves. Old Hoser, that person is sitting there quietly, वो भी वहाँ पे कोई नहीं था,
with his 3-corn hat. उन 3-corn hat पहने हुए वो वहां पे बैठते थे. द फार्मर मेयर भी थे, द फार्मर पोस्टमास्टर भी थे, एंड द सेवरल अदर्स बिसाइड्स. उनके साइड में भी बहुत सारे बैठे हुए थे. एवरीबडी लुक सैड. हजर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर, थम एट द एजिस. देन व्हाट हैपन, उन्होंने भी क्या पहना था, बहुत ही पुराने जो चेंजेस होते हैं, वार्म, वी कैन से दैट, बहुत ही वार्म क्लोथ्स पहने होते हैं, वो भी उन्होंने पहने थे. पहले पुराने कपड़े और वो सारी चीजें लेके वो वहां पे बैठे थे पीछे, लेकिन उनके फेस पे कोई हैप्पीनेस नहीं थी. दे वर सिटिंग साइलेंटली. ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस. उन्होंने क्या किया था कि स्पेक्टिकल पहने थे, वो भी साइड में रख दिए थे, और पेजेस यानी कि जो बुक है वहां पे पेज पे रख दिए थे. और नथिंग्स गोइंग ऑन, दे वर ऑल वर वेरी सैड एट दैट टाइम. सो आई वाज, दैट मीन्स द हियर वी कैन से दैट फ्रेंड्स वाज वेरी सरप्राइज्ड बाय लुकिंग दैट.